on this special day, which is called Teachers' Day. And it is very special for me and I hope for you also. कहते हैं देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री साधारण नहीं होते. You know why? I'll tell you. Because construction and destruction just in their hands. So you should be proud on yourself that God has given you this divine profession. Because you are the builder, you are the creator of a nation. Complete youth is in your hand. You are mentor their lives. You are the knowledge giver to future generation. Actually, if I'll say you decide the direction of future, you decide the future of any country, then it will not be any hyperboles. Because you mold and nourish raw talent and potential of your pupils. So it is honor to be the part of such a remarkable force. That's why it is said that worshipping the feet of teacher, worshipping the feet of guru is a... Thank you very much, Pooja ma'am, for your wonderful poem and for your wonderful words. एक्चुअली मैम अभी बताया कि टीचर का रोल बताया है मैम ने, तो यहाँ पर अभी आज हम जो ये टीचर्स डे मना रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में या उनके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है. लेकिन भारत जो है शुरू से ही तपोभूमि रहा है और यहाँ पर कई और ऐसे गुरुओं ने जन्म लिया है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद. इन सबका भी बहुत योगदान रहा है भारत में और इन्होंने अपने राष्ट्र को जो है विदेशों तक जो है अपना परचम, अपने भारत का परचम जो है लहराया है. तो टीचर का गुणगान जो है उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी. आप वो पंक्तियां जो है आज ये शिक्षा दिवस का जो ये हमारा बोर्ड तैयार हुआ है उस पर भी लिखी हुई पाएंगे. मैं आपको उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय. सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय. सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए. अर्थात इसमें यह कहा गया है कि अगर पूरी धरती को जो है कागज बना लिया जाए और पूरे वनों की लकड़ी को कलम बना लिया जाए, और आपको पता है कागज पर लिखने के लिए स्याही की जरूरत होती है, तो स्याही के लिए जो है कवि ने कहा है कि जो समुद्रों का, 7 समुद्रों का जो पानी है उससे अगर गुरु की महिमा लिखना शुरू किया जाए तो भी जो है लिखना, उसे गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता है. तो गुरु की महिमा जो है अपरंपार है. तो आप एक बार अपने गुरुओं के लिए प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप होल हार्टेडली सबका वेलकम करें और सबके लिए जो है क्लैप करें. Now, I would like to call Nisha ma'am for a poem. Revered Academic Director ma'am, Principal sir, Vice Principal ma'am, teachers and all my dear students. I feel privileged to have an opportunity to share my views for students as a teacher. As everyone knows that it's Teacher Day today, that's very wonderful day for a teacher. Students always come up with something special for teachers on this auspicious day. In return to some gratitude, I would like to recite a poem for my genius students. Struggle today for a better tomorrow. Struggle today for a better tomorrow. Listen carefully everyone. Hard work pays. You should always know. No matter how tough may seem the climb, keep moving, keep fighting, one win at a time. Perseverance and patience go a long way, because for the sunrise
even the longest night make way. What it means? If you will do hard work now, your future will be bright. Hard work gives results always. Keep it in your mind. Hard work always give you result. No need to get worried about the obstacles which come in your ways. Keep moving ahead by having determination and perseverance about your goal. You will definitely win one day. Don't forget, there is a dawn in life only after facing a lot of problems. You people are brilliant. You can achieve the things whatever you deserve. I would also admit that sometimes I get upset and strict with you. Always you observe me in your class, but that's the reason behind it. But no need to get worried about, my dear students. That's just to stop you from distracting your path only. Please follow the instructions which are given by your teachers. I would like to conclude my words with this note. I don't need any gift on Teachers' Day from your side. The only thing I want, your hard work for your studies. Thank you, my dear teachers, for listening my words, and I hope you will imply for the same. Thanks to everyone. Thank you, ma'am, for a beautiful poem and for your words. Ma'am has said that if you work hard, then everything is going to be worth. So, everything that ma'am has told in her poem, keep applying these things in your life for a better future. So, now I would like to call upon stage Rajbala ma'am for Hindi speech. शिक्षक तो ऐसे होते हैं जैसे हो भगवान। जिंदगी की राह यूं आसान न होती, जिंदगी की राह यूं आसान न होती, ना होता साथ मेरी ये कारवां, ऐसी मेरी शान न होती। ये सब मेरे गुरुओं की बदौलत, ये सब मेरे गुरुओं की बदौलत। अगर गुरु न होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान न होती, तो मेरी कोई पहचान न होती। आदरणीय निदेशक महोदय, निदेशिका महोदया, प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, सुप्रभात और आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं शिक्षा के आभूषण से सुसज्जित हूँ। गुरु देवो भवः के आदर्श को मानने वाले इस देश में वैसे तो किसी शिक्षक सम्मान के लिए किसी एक दिन के मोहताज नहीं है, बल्कि उनका सम्मान तो सदा से होता आया है और होता ही रहेगा। फिर भी 5 सितंबर का दिन हमारे देश में शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है, जो स्वयं एक महान विद्वान और एक महान शिक्षक थे, जिन्होंने 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में स्वतंत्र भारत के वे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। बच्चों, शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक रोचक तथ्य है। जब एक दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी के विद्यार्थियों ने उनका जन्म दिवस मनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, अगर मेरे जन्म दिवस को सभी शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि शिक्षक ही समाज के राष्ट्र निर्माता होते हैं और शिक्षक ही किसी समाज की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं।
इसलिए केवल मुझे ये सम्मान न देकर सभी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, उसी दिन से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वह होता है गुरु का, क्योंकि एक भावी आदर्श नागरिक का निर्माण केवल आदर्श गुरु ही कर सकता है। और कहा भी गया है, शिक्षक जलते दीप सा, शिक्षक जलते दीप सा, शिक्षा उनका नूर, अंधकार अज्ञान का करे ज्ञान से दूर। तो प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक और शिष्यों दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों का बोध हो, शिक्षकों की अपने शिष्यों के प्रति कल्याण की भावना हो और शिष्यों की अपने गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास की भावना हो। क्योंकि शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा ग्रहण करना दोनों ही महान कार्य है। जब दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने लक्ष्यों का बोध होगा, तभी कोई राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अंत में कुछ पंक्तियां मैं विश्व के सभी शिक्षकों को समर्पित करती हूँ। शब्दों से संभव नहीं, शब्दों से संभव नहीं गुरु महिमा का गान, पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान। क्यों? क्योंकि शिक्षा यदि संजीवनी, शिक्षा यदि संजीवनी तो शिक्षक है हनुमान, शिक्षक है हनुमान। मृत स्वप्नों में डालते शिक्षा औषधि से जान, मृत स्वप्नों में डालते शिक्षा औषधि से जान। तो प्यारे बच्चों, सदा अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपने अध्यापकों के स्नेह और सानिध्य में आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। राजबाला मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से और इतनी सुंदर पंक्तियों का इस्तेमाल किया और मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छी लगी इनकी कही हुई बातें और आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो कृपया करके एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। Now I would like to call Mukesh ma'am for a Hindi poem. Please come on stage, ma'am. आदरणीय निदेशक महोदय, निदेशिका महोदय, प्रधानाचार्य व मेरे मेहनती कर्मठ लगनशील सहकर्मी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। गलियों से खेलते वर्तमान से, गलियों से खेलते वर्तमान से भविष्य के ख्वाब सजाती हूँ। गलियों से खेलते वर्तमान से भविष्य के ख्वाब सजाती हूँ। कोरे कागज पर लिखकर, कोरे कागज पर लिखकर उन्हें किताब में बनाती हूँ, उन्हें किताब में बनाती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। अनपढ़ से शुरू कर, अनपढ़ से शुरू कर ज्ञानी तक पहुँचाती हूँ। अनपढ़ से शुरू कर ज्ञानी तक पहुँचाती हूँ। घनी अंधेरी दीवारों पर, घनी अंधेरी दीवारों पर मौन रोशनी की मोहर लगाती हूँ। घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मोहर लगाती हूँ। माना कि मैं केवल शिक्षक हूँ, विद्यार्थी को पढ़ाती हूँ। पर चंद्रमा पर जाने की पहली सीढ़ी मैं बनाती हूँ। पर चंद्रमा पर जाने की पहली सीढ़ी मैं बनाती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। शिक्षा पर नित नए प्रयास देखकर, शिक्षा पर नित नए प्रयास देखकर थोड़ी सी विचलित हो जाती हूँ, थोड़ी सी विचलित हो जाती हूँ। पर हर सरकारी फरमान को,
पर हर सरकारी फरमान को मैं बखूबी निभाती हूँ, पर हर सरकारी फरमान को मैं बखूबी निभाती हूँ। हैप्पीनेस और ईएमसी से विद्यार्थी को परिचित कराती हूँ, हैप्पीनेस और ईएमसी से विद्यार्थी को परिचित कराती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ, शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। पढ़ने और आगे बढ़ने का, पढ़ने और आगे बढ़ने का मार्ग मैं दिखाती हूँ। जो शिक्षा देती हूँ पहले आदर्श बन दिखाती हूँ, जो शिक्षा देती हूँ पहले आदर्श बन दिखाती हूँ। त्याग देती हूँ इच्छाएं बहुत सी पर कभी ना ये जताती हूँ, त्याग देती हूँ इच्छाएं बहुत सी पर कभी ना ये जताती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ, शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ, जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी। आज यदि मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हमें ये लगे कि बात कह देनी चाहिए तो कह देनी चाहिए। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षक की सैलरी सबसे ज्यादा है, शिक्षक का वेतन सबसे ज्यादा है। वहां जज है, कमिश्नर है, सबका जो वेतन है कम है। तो एक बार किसी ने रिट डाली कि हमारा जो वेतन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो वहां के जो जज थे उसने कहा कि हमारा पद उनसे कभी ऊपर हो ही नहीं सकता जिन्होंने हमें जज बना दिया, कमिश्नर बना दिया, हमें इतने ऊंचे पद पर बिठा दिया, तो उससे ऊंचा पद हमारा कैसे हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आज आप हमारा प्रतिरूप बने हुए हो, हमारी छवि हो, आज हमें फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आपकी तरफ से बड़ी निराशा होती है जब एक अध्यापक आकर कक्षा में आपसे कुछ पूछता है, आप सिर्फ जो है जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको अध्यापक मानते हो। मेरे ख्याल से जो 11th-12th में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो मेरे पढ़ाए हुए हैं। 30-40% ऐसे बच्चे हैं जो मेरे हाथ से निकले हैं। लास्ट वीक मेरे हाउस की ड्यूटी थी, मैंने 11th और 12th में जाकर पूछा कि बेटा मेरे हाउस से कौन बच्चा है। एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं हूँ, ड्यूटी पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। बेटा हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। हर अध्यापक ये चाहता है कि आप पढ़ लिख कर ऐसे ओहदे पर जाओ जहां हम सम्मान के साथ ये कहें कि ये मेरा बच्चा है। यहाँ आने के बाद हम अपने बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ जो 1200 बच्चे बैठे हैं वो सब हमारे हैं। कभी भी किसी अध्यापक के मुंह से सुनना, हर अध्यापक ये कहता है कल मेरा पेपर है। जब आपका पेपर होता है ना, मेरा पेपर है। जब उसकी क्लास का विद्यार्थी बाहर होता है, मेरा बच्चा है। जब हम आप में भेदभाव नहीं करते तो सुप्रभात। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया गया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया। मुझे हिंदी कविता लिखने का शौक है, इसलिए शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैंने कविता लिखी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मैं दिल से प्रणाम करती हूँ उन सभी शिक्षकों का जो बच्चों को जोहरी के तरह तराश कर उन्हें हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं कविता से क्या बयान करूं। उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी मैं अपनी कविता के माध्यम से उनके चरणों में कुछ शब्द समर्पित करना चाहती हूँ। एक अच्छा शिक्षक समझता है अपनी कक्षा को बगिया और ऐसे ध्यान रखता है जैसे हो उनका बागवान, जो भटके हुए और कमजोर बच्चों को ले आता है मुख्य धारा में और नहीं गिरने देता उनका सम्मान। वह देता है सब बच्चों को कक्षा कक्ष में अपनी बात रखने की, बच्चों को प्रश्न पूछने पर बना रहता है धैर्यवान। उसे होता है बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान, वह करता रहता है हर उम्र की समस्या का समाधान। एक दोष जैसे लगता है बच्चों को कभी कभी जब हर बच्चे पर देता है वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
बन जाता है वह कभी कभी विद्यार्थी जब अपने विषय को लेकर नहीं छोड़ता कोई कसर और पढ़ाता रहता है अपना दिन प्रतिदिन अपना ज्ञान। माँ बाप जैसा लगता है बच्चों को जब ढूंढता है उनकी समस्याओं का समाधान। वे बच्चों को मारने पीटने की बजाय उनकी गलतियों को थोड़ा डांट से समझा देता है और अच्छा काम करने पर उनकी पीठ थपथपाता है। एक संत महात्मा जैसा लगता है बच्चों को जब कक्षा में बोलना शुरू करता है और हर बच्चा लगा देता है अपना ध्यान। जिसको पता होता है कि कोई भी बच्चा मूर्ख नहीं है, हर किसी में एक प्रतिभा छुपी है, उसको निखारने में वो लगा देता है जी जान। बहन भाई जैसा लगता है बच्चों को जब वह दुखी और परेशान बच्चे को कहता है हर परेशानी का हल होता है, कर जाओगे तुम भी उसका निदान। राष्ट्रभक्त होते हैं ऐसे शिक्षक जो करते हैं भावी पीढ़ी का निर्माण। हर बच्चा उस जैसा बनना चाहता है और हमेशा करना चाहता है उसका सम्मान। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर ऐसे होनहार शिक्षक को मैं भी करती हूँ सलाम। धन्यवाद। Self-made written poem. You know, a teacher sometimes is not only a teacher. Sometimes she or he can be a writer and a singer and a poet too. So now I would like to call Manish sir for a poem. So welcome him. Manish sir, please come. Good morning, Principal Sir, and Vice Principal Ma'am, and Secretary Director Ma'am. Today I am here to recite a poem. The title of my poem is कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सबसे पहले सभी को हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पोएम अच्छी लगेगी, तो शुरू करते हैं। कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सहली कितनी यातनाएं पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर त्यागना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर त्यागना था, मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के दवंद से एक बालपन का सामना था, निर्णयों के दवंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था छोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही कार्य को, राम से ही लड़ गया था। कुल वंश उसके कर रहे थे, राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ को बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। थैंक यू।
showing this regional dance before us. And a very huge round of applause for everyone. Now, I would like to call the students for Shukriya dance. Please come on the stage, the students who are performing Shukriya dance. Teachers Day from all of us, and thank you for making us enabled. Shukriya. Now we come to the end of this lively gathering. Thanks to all people who were directly, indirectly helped to make today's morning assembly successful. With this note, I would like to call our Honorable Director Sir on stage. Please give a big round of applause for our Director Sir. गुड मॉर्निंग। आज का ये एक आम दिन की शुरुआत हुई और इस आम को खास बनाने में जिन जिन का भी सहयोग रहा है, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज का ये जो विशेष दिन है, इसकी अपनी एक अलग अहमियत है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। आपको पता है कि आज के दिन हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जो जन्मदिन है वो अध्यापक दिवस के तौर पर हर वर्ष आज के दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। मैं मंच के माध्यम से सभी टीचर साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि कितना पुण्य कार्य आपको अपनी लाइफ में मिला है। विशेष तौर पर अगर मैं इसको अपने साथ जोड़ के देखूं तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस दिन बच्चों के साथ शेयरिंग होती है क्लासरूम के अंदर, चाहे वो किसी तरह की एक्टिविटी हो, उस दिन एक अलग मन के
रही है, तो कितना पावन कार्य जो है वो आप हम साथी मिलके कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज की इस जो कि खासकर एकेडमिक्स जो एक्टिविटीज होती हैं, एक विशेष दिन जो अध्यापक दिवस के रूप में पूरा देश आज मना रहा है, मैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से सभी टीचर्स को और बच्चों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और टीचर से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जिसको जो भी जिम्मा मिला है वो अपना पूरी ईमानदारी के साथ इन बच्चों की बेहतरी के लिए एक पल आपका इनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। सही मायने में अध्यापक दिवस मनाने का ये जो कार्यक्रम है, इसका सफल आयोजन मैं तभी मानूंगा जब हम सब ये पूरी टीम बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ इन बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें, ऐसा मैं पूरी टीम से अपेक्षा करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा जी जान से जो काम आपको मिला है, जो जिम्मा आपको मिला है, बखूबी से आप निभाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ इस संस्था से एकेडमिक्स पार्ट के अलावा और जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, तो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उनके कानों तक पड़ रही है, मैं ये कहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों का रोल है संस्था के लिए, इन बच्चों के लिए, अभी अगर हम आके मैं तो ये कहूँगा कि सही नहीं होगा। तो जो भी एम्प्लॉइज किसी ना किसी तरीके से यहाँ इस टीम के मेंबर हैं, सबको मैं आज के इस पावन अध्यापक दिवस पर बधाई देता हूँ। और जो मैंने एक्टिविटीज आज इस मंच पर देखी है, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी चूक हुई है मुझसे कि मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच पाया। एक टेल है कार्यक्रम की, तो जो कुछ है केवल वो देखने को मिले हैं। तो जो लॉजिक थी, जो प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है, वाकई मतलब लाजवाब रहा है। एक बार फिर से आज के सफल आयोजन के लिए जिनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरीके से भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यापक दिवस। Good morning, everyone. Respected Director Sir, the Principal of the school, the Vice Principal, the coordinators, all my dedicated, hardworking, energetic staff members, the teachers of the day, class 12th and 11th, and my dear scholars. Happy Teachers Day to every one of you. I will not take much of the time because since morning you are listening about your teachers, the poems and all these things. And I am here to just to say thank you to everyone. I will start with the God Almighty that He showed us this day to celebrate this. And I personally from my side, I bow my head in front of the Almighty that from last 23 years I am cherishing this profession and I am feeling proud to be a teacher today. My message is that if slowly and steadily we will work with our vision, with our dream, with our aim, nothing is unachievable. 23 years back, I was a nursery teacher, and whenever I am looking at Anjali ma'am, I am looking at Vinita ma'am, then I was thinking at that time, my vision is that all the teachers must turn to the
exposure, in the discipline, in the uniform, because the sky is the limit. I'm not saying that I'm remembering my teachers today. No, I'm not remembering because I'm never forgetting them. They are always in my heart. From nursery till my post-graduation, they are in my heart. My team, wherever I was the VP, I was the principal here, and I'm proud to have the teams which God has blessed me wherever I went, and still in this present school also. So my great thank to all of you, all the teachers, all the students, one and all who is associated with this branch of the school. Daily in the morning, it's my routine that when I'm entering, I'm touching the gate of reception 3 times, that I'm feeling blessed that I'm associated to this field. Second, as I'm entering to my office, daily I'm praying to God and surrendering each and every one of you, your families, your neighbors, me, everyone in the feet of God, that I should not make any of the mistake today and everything should go well today. And at night I'm thankful to God that thank you so much for this blessing. Again the day is coming and wonderfully you are cooperating me, you are moving forward in all the fields, but still there are miles to go. Heartful thank to Principal Sir, to Anita Ma'am. Many of the things are there which happened directly or indirectly. Rajeshwari Ma'am for the program. Jimmy Sir who is always standing there for this. And I'm extremely sorry if I'm forgetting any name, those who have done the wonderful things here. So I want to give a loud clapping to all of you and please cooperate. Yes. Thank you so much each and everyone. You are requested to get ready for the national anthem. Without noise, silently stand up for the national anthem. I want to see a loud sound today. Let us see how nicely you will sing it. This is very important. We already are late, but just one thing I would like to say, that teachers, those who are here in this school, they are the best, right from nursery to class 12. And a big round of applause for all the teachers. They are doing wonderful job over here, taking care of the student. They are supposed to teach, but other than that, they are doing so many different things for the betterment of the student. I salute them from my whole heart. Thank you and have a nice day.